Today we will see navigation design. What is the use of navigation? Navigation is mainly used for your what we can say, in case of your web design, the navigation is used in switching from one page to another page. This is what the main name of your navigation is in case of your any of the web application, if you consider the web application. Or in case of any software, what is navigation? The navigation can be treated as switching from one window to another window, or switching from one page to another page can be your what navigation is. So when we talk about the interaction can take place at several levels. There can be the interaction using these widgets or using screen or windows. The interaction can be takes place using your screens or different types of windows or some kinds of your what widgets. Navigation within application, just now I told you, whatever application you have, whether you have web application, whether you have your software application, the navigation is nothing but switching from one page to another page is nothing but your what navigation within application. Or we can say the interaction between the environment. So these are various what, these are the various levels of your interaction. जैसे यहाँ पे आपने दिया है, if you consider the example of your PC application, और PC में जो भी सॉफ्टवेयर है वो अगर हम देखते हैं, so that PC application versus website versus your what physical device. So if we have widget on your PC application, then in terms of your web application it will be your form elements, tags or links, whereas in physical device it can be your physical button, dials or lights, we can say. So this is what the comparison, how the interaction or how the navigation takes place in your web application, in your software application, in your web application and through your what physical device. So if the system have or the software have screen design, for website it will have what your page design, whereas in case of your physical device it will have physical layout. If your application have navigation design, for website it will have site structure, and for physical device it will have main modes of device. जनरली आपके नेविगेशन डिजाइन कहाँ पे होते हैं, सॉफ्टवेयर्स में होते हैं. अगर हम वेब एप्लीकेशन कंसिडर करते हैं, इन केस ऑफ वेब एप्लीकेशन इट विल हैव सम साइट स्ट्रक्चर. साइट स्ट्रक्चर मींस क्या होता है, अगर आप कोई वेबसाइट में देखोगे तो वहां पे साइट मैप होता है और साइट स्ट्रक्चर होता है. इट विल गोइंग टू शो यू हाउ मेनी पेजेस एंड विच पेजेस दोज वेब एप्लीकेशन हैव. अगर आप यूनि पुणे के वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपको वहां पे तुरंत पता चल जाएगा कि उसका साइट मैप क्या है. आई डोंट नो अभी फिलहाल यूनि पुणे ने उनके वेबसाइट पे साइट मैप रखा है या नहीं. आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट लेट्स सी वेदर दे हैव द साइट मैप और नॉट. अगर होगा तो हमें इजीली पता चल जाएगा साइट मैप क्या होता है. लेट्स सी वेदर इट विल हैव यूजफुल लिंक. हाँ, यहाँ पे है, देखो आप अगर यहाँ पे देख पाओगे स्क्रीन में ऊपर, तो यहाँ पे साइट मैप करके दिया है, उस पर क्लिक करो. क्लिक करने के बाद आपको देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट आर द मेनूज ऑफ दैट वेब एप्लीकेशन, और उस मेनूज के अंडर सब मेनूज कौन से हैं. सो इफ यू स्क्रॉल डाउन यू विल सी दिस. सो दिस इज व्हाट द साइट मैप इज. जैसे फॉर एग्जांपल इनका जो भी है ये होम मेनू है, तो यहाँ पे होम दिखेगा आपको. फिर सेकंड कौन सा है आपका, अबाउट यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे दिखेगा अबाउट यूनिवर्सिटी. फिर अबाउट यूनिवर्सिटी के अंडर देखिए कितने सारे सब टैब्स है, तो आपको यहाँ पे भी वो दिखेंगे. फिर गवर्निंग बॉडी रहेगा यहाँ पे कहीं, ये देखो ये गवर्निंग बॉडी है. सो उन्होंने वहां पे अबाउट यूनिवर्सिटी के सब टाइप में क्या दिया है, गवर्निंग बॉडी दिया है. फिर यहाँ पे आप अगर देखोगे नेक्स्ट है आपका एकेडमिक्स, तो यहाँ पे आपको एकेडमिक्स दिखेगा. फिर एकेडमिक्स के अगर कुछ टाइप है तो उनके भी सब टाइप्स यहाँ पे आपको दिखेंगे. सो दिस इज व्हाट द साइट मैप इज, and this site map is generally applicable to your what web applications. So
these sitemaps are, or this site structure is mainly applicable to your websites, and in case of your software it will have navigation design. ऐसा यहाँ पे क्या है, ये कंपैरिजन दिया है, and what will be there in case of your physical device वो यहाँ पे दिया है. For applications there can be other apps and operating system. For website it will have either the web browser or some external links, और physical device के केस में क्या होगा, it will be the real world. That's it. So this is how the navigation can take place within software, within web applications, and within physical devices. So what is the type of your navigation? Local structure. So what exactly the local structure is? The name itself indicates that this type of structure is available locally for the use. Locally means what? जैसे आप local और global variable use करते हो programming में, in the same way the local will be accessible to only that particular area. It will not be accessible throughout the global. It is looking from one screen or page out. एक ही स्क्रीन के अंदर या एक ही पेज के अंदर हमें क्या दिखेगा, ये स्ट्रक्चर जो भी है वो दिखाई देगा इन केस ऑफ योर व्हाट, लोकल स्ट्रक्चर. कंसीडर दिस. सो दिस इज द लोकल पार्ट. यहाँ से मैं अगर कुछ स्टार्ट करता हूँ, मुझे अगर यहाँ तक पहुंचना है, तो इसमें अगर मल्टीपल वेज है तो हम कौन सा वे सिलेक्ट करेंगे. दिस इज माई लोकल. मुझे क्या करना है, लोकली यहाँ पे जाना है. सो दिस इज व्हाट योर लोकल स्ट्रक्चर इज. ग्लोबली में क्या होगा, यहाँ से लेके कहीं और जाएंगे, वहां से किधर तो भी जाएगा, वहां से कहीं पे तो भी जाएगा, और वहां से फिर आप आपके क्या करोगे, गोल को अचीव करोगे. जैसे मैं आपके साथ अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सो अवर कम्युनिकेशन इज वन टू वन कम्युनिकेशन लेट्स से. तो ये जो भी वन टू वन कम्युनिकेशन रहेगा, उस वन टू वन कम्युनिकेशन में एग्जैक्टली क्या होगा, मेरा कम्युनिकेशन आपके साथ डायरेक्टली जूम के थ्रू हो रहा है, बट मुझे पता नहीं है मेरा ये जो भी इंटरनेट है वो कौन से सर्वर को कनेक्ट हो रहा है, आपका जो भी इंटरनेट है वो कौन से सर्वर को कनेक्ट हो रहा है. वी डोंट नो, बट हमें क्या दिख रहा है, वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू डायरेक्ट नेटवर्क ऑफ जूम. बट उसके पीछे ऐसा कुछ तो भी, कहीं से तो भी, कोई तो भी सर्वर से जाके एक दूसरे के साथ क्या होंगे, हम कनेक्ट होने वाले हैं. सो दिस इज व्हाट द लोकल इज. Whereas the next one is your global structure. Global will be in terms of your what, hierarchical organization. So what will happen in case of your global structure? It is the structure of site जो अभी हमने देखा था. It will be responsible for movement between various screens. जो हमने अभी यूनिपुणे के साइट पे एग्जांपल देखा था, वहां पे आप अगर साइट मैप आपको याद है, तो वहां पे क्या था, आप अगर किसी भी आइटम पे क्लिक करोगे तो वो एक पेज से दूसरे पेज पे क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है. So that is nothing but the movement between your screens, and it will be having the structure of site, or we can say site map जो अभी हमने देखा था वो. So the system will have some information and help pages. अब अगर कोई भी सिस्टम लोगे, कोई भी सिस्टम लो, either it will be your software or it will be your web application, और आपका कोई भी फिजिकल सिस्टम लो, जैसे आपकी कार है, आपका बाइक है, कोई बिल्डिंग है, कुछ भी हो, we will call it as a system. So every system will have some information, and that system will have some help document, जिसमें उस सिस्टम के रिलेटेड आपको क्या दिए हैं, कुछ हेल्प डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रोवाइड करेंगे. सो एवरी सिस्टम विल हैव these two things. Again that system have some management controls. जैसे अगर आपकी कार है, तो कार को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, कुछ गियर होते हैं, आपके पास एक्सीलेटर होता है, आपके पास ब्रेक्स होते हैं, कुछ कंट्रोल में मीडिया कंट्रोल होते हैं, एसी होता है. तो उसे मैनेज करने के लिए आपके पास कुछ तो भी मैनेजमेंट पैनल होता है. सो यू आर गोइंग टू मैनेज दैट सिस्टम यूजिंग दिस मैनेजमेंट. वहां पे आपको कुछ मैसेजेस डिस्प्ले होंगे. अभी जो भी स्मार्ट कार है, वहां पे आपको ये मैसेजेस दिखते हैं. सो एवरी सिस्टम विल गोइंग टू जनरेट सम मैसेज दैट नेविगेशन के मैसेज होते हैं. अगर आप गूगल मैप लगाओगे और गूगल मैप का यूज करके आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जब आप ट्रैवल करते हो, तो हम जब ड्राइव करते हैं तो वो जो भी गूगल में लेडी होती है या जो कोई भी होते हैं वहां पे, वो हमें बोलते हैं कि टेक राइट टर्न फ्रॉम, यहाँ से 600 मीटर के आगे आपको क्या करना है, राइट टर्न लेना है, या आपको स्ट्रेट जाना है इतने किलोमीटर के बाद, फिर वहां से आपको सेकंड एग्जिट लेना है, थर्ड एग्जिट लेना. सो दे आर जनरेटिंग व्हाट, सम मैसेजेस, and those messages will help us to operate the system likewise. So what will be the role of suppose management? The management will
be responsible for adding new user to the system or removing some user from the system. Again, every user will have some predefined work. If that user have to do their predefined work, that user must be added in the system. Without adding that user, the user cannot access the features of the system. For that purpose, you need to add some users, and this adding of user to the system will be the task of your what management. और to remove the system, जैसे अगर कोई यूजर है जिसने जॉब से रिजाइन कर दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस यूजर के जो भी राइट्स है वो सारे राइट्स निकाल लेने पड़ेंगे. So the activity of removing the user from the system will be done by your what management. So this is what the hierarchical organization is. In this hierarchy there are different stakeholders or there are different activities that will be takes place. Then next one will be your under your global structure there will be one dialogue base. इसमें क्या होता है, इसमें कुछ तो भी dialogue होता है. Dialogue means what, how the dialogue will take place. Just consider, if you want to remove the user or if you want to add the user, for that purpose what will happen, we have one main screen. उस मेन स्क्रीन के अंदर मुझे दिखेगा कि मैंने क्या किया है, मैं कुछ तो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ. वहां से आपको क्या होगा, रिमूव यूजर अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि ये एम्प्लॉय जो भी है वो एसएनजेबी छोड़ के गया है, तो उस एम्प्लॉय की जो कुछ भी कंट्रोल से उस एम्प्लॉय को जो कुछ भी हमने राइट्स दिए हैं, ऑल दोज राइट्स शुड बी रिमूव्ड. सो जब भी मैं उस यूजर को रिमूव के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे सबसे पहले पूछेगा, डू यू वांट टू रिमूव, डू यू विश टू रिमूव. वहां पे यस और नो होगा, आपको क्या करना है, यस और नो के ऊपर क्लिक करना है. जैसे भी आप कंफर्म करोगे, व्हाट विल हैपन, द यूजर विल बी रिमूव्ड एंड वी विल बी स्विच टू मेन स्क्रीन. दिस इज फॉर योर व्हाट रिमूव यूजर. और अगर हमें कुछ न्यू यूजर ऐड करना है तो वो क्या करेगा, मेन स्क्रीन से ऐड न्यू यूजर का जो भी फॉर्म रहेगा वो डिस्प्ले होगा. मैं यूजर को ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद मेरा फिर से कहाँ पे चला जाएगा, कंट्रोल मेन स्क्रीन पे निकल जाएगा. सो हियर देयर विल बी द डायलॉग बिटवीन व्हाट मेन स्क्रीन एंड दिस सब स्क्रीन, and that dialog will be established using this confirm box. So this confirm box is called as your dialog box in case of your any of the web application. आप कोई भी वेब एप्लीकेशन देखिए, आप अगर कुछ सबमिट करते हो तो वो पूछता है आपको, डू यू वांट टू सबमिट, यस और नो, ओके और कैंसल. सो दैट बॉक्स इज नथिंग बट योर व्हाट डायलॉग बॉक्स. दैट डायलॉग बॉक्स इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नेविगेशन पर्पज और इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटरेक्शन पर्पज. नाउ नेक्स्ट इज योर व्हाट स्क्रीन डिजाइन. जैसे कि हमने देखा था कि आप लोग तो क्या करते हो, डिजाइनिंग का पार्ट करते हो. अगर आपको कोई स्क्रीन डिजाइन करने के लिए बोलते हैं तो आप स्क्रीन को कैसे डिजाइन करोगे, जस्ट लाइक कंसिडर दिस एग्जांपल. अब इस एग्जांपल में यहाँ पे क्या किया उन्होंने, कुछ तो भी डिजाइन किया है. उस डिजाइन में उन्होंने कुछ सिंबल्स यूज किए. यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ सिंबल्स है, कुछ कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने लिया है. जैसे यहाँ पे ये पूरा जो भी है वो फिल किया है व्हाइट कलर से, और ये भी ये फिल नहीं किया, इसे उन्होंने एम्प्टी रखा है. तो जो कुछ भी है उसके ऊपर आप देखोगे तो उन्होंने कुछ तो भी टेक्स्ट लिखा है. सो विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्स्ट, इफ यू सी दिस टेक्स्ट, with the help of this text you will come to know what is the use of this button. जैसे यहाँ पे ये मैनुअल कंट्रोल के लिए दिया है उन्होंने, कुछ तो भी यहाँ पे बटन्स दिए हैं. यहाँ पे भी उन्होंने कुछ तो भी वेट के रिलेटेड दिया है. अगर हमें टेम्परेचर क्या करना है, कम ज्यादा करना है, आप अगर इसे प्रेस करोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इट विल बी डिक्रीज. आप अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अगर आप यहाँ पे ये बटन देखोगे, आप अगर इसे क्लिक करोगे इट विल बी वर्किंग फॉर 10 मिनट्स. अगर आप इसे क्लिक करोगे तो इट विल बी वर्किंग फॉर 1 मिनट. और इफ यू क्लिक ऑन दिस बटन इट विल वर्क फॉर 10 seconds. सो एवरी बटन विल हैव व्हाट देयर प्री डिफाइंड वर्क. जैसे भी आप यहाँ पे कुछ तो भी क्लिक करोगे, व्हाट विल हैपन, you will see that activity on this display. Now on this display you can see there is 0, but वहां पे आपको कुछ तो भी एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, दिखाई देगी. So this is what the screen design of, we can say, let's say it is the screen design of your what माइक्रोवेव ओवन. तो ओवन का ये जो भी डिजाइन है, इसके लिए अगर कंसिडर कीजिए इन्होंने सिर्फ यहाँ पे ये ड्रॉ करके रखा था और इसके ऊपर ये जो भी लेबल्स है ये लेबल दिए ही नहीं उन्होंने. व्हाट विल हैपन, आपको हर बार इसका मैनुअल देखना पड़ेगा और मैनुअल में आपको चेक करना पड़ेगा ये बटन किसके लिए है, ये बटन किसके लिए है, कौन से बटन का क्या यूज है.
अभी यहाँ पे उनको लेबल दे दिया है, इसलिए हमें पता चल जाता है उस बटन का यूज क्या है. So with the help of this button, what will happen? You can easily interact with this system. So there should be proper what? Screen design. This is the example of your physical device, physical microwave oven जो भी है ये उसका example हुआ. If you consider the example of web application, उसमें आप बटन लेते हो, सेव बटन है और कैंसिल बटन है. गलती से आपने सेव का कोड कैंसिल पे लिख दिया और कैंसिल का कोड सेव पे लिख दिया तो क्या होगा? आपकी पूरी मेहनत जो भी है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी. Just imagine what will happen. So there should be what? Proper screen design. So for that purpose, you must have some tools. That tools will be responsible for डिजाइनिंग योर लेआउट. जैसे ये लेआउट है, देखो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया था कि आपको इतना ही पैनल मिलेगा, इस पैनल में ही आपको क्या करना है? डिजाइनिंग का पार्ट करना है. आपको सारे बटन जो भी है वो सारे बटन आपको यहीं पे डिस्प्ले करने हैं. क्योंकि इस साइड में आगे क्या होगा? वो ओवन का सपोज डोर होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे? फूड रखेंगे जिसको आप गर्म करने के लिए रखते हो. तो उस पैनल के ऊपर तो आप बटन्स नहीं दे सकते हैं. सो उस केस में क्या होगा? आप वहां पे क्या करोगे? उसको एक्सेस करोगे, उसका यूज करोगे उस बटन का और उस पैनल का यूज करके आप क्या करोगे? उसके लिए आपको लेआउट डिजाइन करना रहेगा. एंड दैट लेआउट डिजाइनिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स. जैसे उस टूल का यूज क्या रहेगा? इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन फॉर ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे आप देखिए, all those four similar objects are grouped together. यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी आप देखिए ये चारों को क्या किया? ग्रुप किया है. जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करते हैं? यहाँ पे ग्रुप करते हैं जो दिखने के लिए आपको अच्छे से दिखेगा. सो these tools are responsible for grouping of the elements and for defining the proper structure of the display or screen. Then it will be responsible for order of groups or items. इसका मेन यूज क्या रहेगा? ये जो भी ग्रुप कर रहे हैं हम, तो इन ग्रुप का यूज कैसे करना है आपको? इसका कैसे ऑर्डरिंग करना है? ऑर्डरिंग किस वजह से करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, अगर आप ये देखोगे इसमें बॉटम में अगर आपको दिखेगा यहाँ पे ये 3 बटन्स है. इन तीनों बटन को क्या किया है? यहाँ पे ग्रुप किया है. अब फंक्शनैलिटी जो भी है इन तीनों बटन की फंक्शनैलिटी सेम है. जैसे इट विल गोइंग टू गिव सम टाइम 10 मिनट्स, 1 मिनट और 10 सेकेंड्स. अब कंसिडर कीजिए 10 मिनट्स का बटन यहाँ पे है, 1 मिनट का बटन यहाँ पे बीच में कहीं तो भी दे दिया और 10 सेकेंड का बटन ऊपर कहीं तो भी दे देते हैं. व्हाट विल हैपन? हमें क्या करना पड़ेगा? वो बटन को सर्च करना पड़ेगा एग्जैक्टली वो बटन कहाँ पे प्लेस है. जब तक हमें उसकी आदत नहीं हो जाती है हमें हर बार उसे सर्च करना पड़ेगा. बट इन्होंने क्या किया? यहाँ पे ये तीनों बटन्स को ग्रुप कर दिया और उसको सेम प्लेस पे क्या कर दिया? प्लेस कर दिया. और उनका ऑर्डर जो भी है वो ऑर्डर भी आप देखिए, अगर पहले मिनट लिया फिर बाद में सेकंड्स लेते हैं, like they are ordering the elements. So this tool is responsible for ordering of the groups and items. And again this tool will be responsible for decoration purpose. Decoration मतलब कैसा? जैसे यहाँ पे आपको डेकोरेशन दिख रहा है. अब अगर आप इस डेकोरेशन को ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये जो भी बटन है, इस बटन की बॉर्डर देखिए आप कैसी है. दोनों वर्टिकल लाइन जो भी है वो समवॉट क्या है? उसकी विड्थ जो भी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी बोथ हॉरिजॉन्टल लाइंस के. सो दिस इज व्हाट द डेकोरेशन इज. या फिर आप इसका भी डेकोरेशन देखिए, इस बटन का डेकोरेशन आप देख सकते हैं. यहाँ पे इस वजह से उन्होंने क्या किया है? राउंडेड रेक्टेंगल लिया है और उसके एक कॉर्नर में उसको सिंबल दे दिया है. सो दिस गिव्स व्हाट? अट्रैक्शन. इससे क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, यूजर को कुछ तो भी अलग है ऐसा समझता है. जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी कुछ तो भी सिंबल यूज किए हैं, यहाँ पे भी ये कुछ सिंबल्स है. आपको हर जगह पे कुछ तो भी सिंबल्स क्या है वहां पे दिखेंगे. सो दिस डेकोरेशन विल बी हेल्पफुल और इट विल बी यूजफुल फॉर अट्रैक्टिंग द यूजर टू दैट पर्टिकुलर बटन. देन नेक्स्ट थिंग विल बी योर व्हाट? अलाइनमेंट. अलाइनमेंट इज, आपको पता है अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट. So this alignment will be useful for what? Aligning the components on the screen. जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये चारों जो भी बटन है, ये चारों बटन देखिए प्रॉपरली अलाइन है दोनों साइड से. यहाँ से भी उनकी विड्थ सेम है, यहाँ पे भी उनकी विड्थ सेम है, उनकी हाइट और विड्थ चारों बटन्स की सेम है. यहाँ पे भी इन दोनों का आप देखिए. और ये जो भी है आपका
इलिप्स जो भी निकाले हैं, चारों इलिप्स, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज प्रॉपरली अलाइन, ये सब क्या है आपका प्रॉपरली अलाइन किया हुआ है यहाँ पे। सो वन मोर एग्जांपल ऑफ स्क्रीन डिजाइन इज, जैसे यहाँ पे ये फॉर्म है, नाउ यू नो द यूज ऑफ दिस फॉर्म। जैसे भी आपके सामने ये फॉर्म अपीयर हो जाएगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है क्या करना है आपको। You immediately start filling your information in front of your what? Those labels. So every form component have its predefined activity. ये वाला जो भी बॉक्स है, इस बॉक्स में आप क्या करोगे, आपका एड्रेस फिलअप करोगे? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया आपको क्या करना है, आपका नेम एंटर करना है। सो दिस इज व्हाट द स्क्रीन डिजाइन विल बी। So this screen design is again useful for your user action and control. User action means what? What action you are going to take once you see this screen? You immediately start filling your information here in this box. And once you finished with filling the information, कहीं पे तो भी बटन रहेगा, आप बटन पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे, आपका डेटा जो भी है वो क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। So user will going to have some action and user will going to control some components like this. सबसे पहले वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन एंटर करना स्टार्ट कर देगा इसमें। इट विल स्टार्ट एंटरिंग इट्स ओन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन लेबल, and every user know what to do once he will face this screen. Every user know what to do with this screen. Then next one will be your this screen design. Consider this. Now when you see this screen, you will come to know what this screen will going to have. ये स्क्रीन के अंदर क्या है, ये आपको यहाँ पे क्या होगा, इमीडिएटली समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, कुछ आपके फाइल्स जो भी है, उन फाइल्स को यहाँ पे क्या किया है, प्लेस किया है, और उसकी ये जो भी है, दिस इज द डेट ऑफ इट्स मॉडिफिकेशन। सो such kind of screen will be, again the screen design is important for your appearance. उसका appearance कैसे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देखिए, it is sorted according to the name, इसलिए आपको यहाँ पे CH 0 5 6 7 8 9 10 इस वजह से दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एरो जो भी, यू विल सी दिस एरो, जब भी आप नेम पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा नेम के अकॉर्डिंग। आप अगर यहाँ पे डेट पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें जो भी है वो सॉर्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इट्स डेट। सो लाइकवाइज देयर इज अ वन फोल्डर जिसका नाम है चैप्टर 33 2003 समथिंग कुछ तो भी, और उस चैप्टर के अंदर ऐसे क्या है, कुछ फाइल्स है। सो दिस इज द स्क्रीन डिजाइन इज यूजफुल फॉर योर व्हाट, अपीयरेंस पर्पस। तो अपीयरेंस में क्या रहेगा, हाउ टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर, यूजर को कैसे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे, दैट इज व्हाट योर अपीयरेंस विल बी। इट्स एस्थेटिक्स एंड यूटिलिटीज, जैसे मैंने बोला आपको, यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, दैट विल बी द यूटिलिटी, दैट विल बी द फैसिलिटी गिवन टू द यूजर। और एस्थेटिक्स मींस व्हाट, उसका लुक कैसे है, ये कैसे आपको दिख रहा है, दैट इज व्हाट द एस्थेटिक इज, whether it will have some color combination or it will be in 3D. So this is what the color, and कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको क्या होंगे, 3D में भी दिखाई देते हैं, एंड दे विल हैव सम कलर कॉम्बिनेशन देते हैं। वो आजकल क्या होता है, अपीयरेंस अच्छा आने के लिए उसे क्या करते हैं, 3D लुक भी देते हैं।